Hello children, this is Poonam Bagga back again with chapter 1 Real Numbers. In our previous class we completed exercise 1.2. Today we will be discussing about irrational numbers. We know that irrational numbers are the numbers that cannot be written in the form p by q, where p and q are integers and q is not equal to 0. ऐसे numbers जिनको हम numerator upon denominator p by q फॉर्म में नहीं लिख सकते वो irrational numbers हैं और इनके examples हैं square root of numbers which are not perfect squares. For example, these numbers 2, 3, 5, 6, 7 and so on, these are not perfect squares. And now if we take their square root, then these numbers root 2, root 3, root 5 and so on, these are irrational numbers. This we know from our previous class, but today we will be proving that actually these are irrational numbers. To prove this, we need the help of one theorem which states that let p be a prime number. If p divides a square, then p divides a, where a is a positive integer. Let us try to understand this with the help of some numbers. We know that 3 divides the number 6 square. 6 square is nothing but 36 और 3 36 को डिवाइड करता है. हमें पता है 3 12 है 36 और हम डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 0 मिलेगा, कंप्लीट एग्जैक्ट डिवीजन होगा. और साथ ही साथ आप देखिए 3 डिवाइड्स 6 ऑल्सो. ठीक है, देखिए p divides a square. If p divides a square, then p divides a. If 3 divides 6 square, then you can see 3 also divides 6. So are you getting the point here? We can take one more example. Let us take the number 2. We know that 2 divides 4 square. What is 4 square? It's 16. और 2 16 को डिवाइड करता है. साथ ही साथ आप देखिए 2 4 को भी डिवाइड करता है. तो अगर कोई नंबर p a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब p a को भी डिवाइड करेगा. If p is a factor of a square, then it will surely be a factor of a also. Now using this theorem, we will be proving that root 2 is irrational, and to prove this we will be using the method of proof by contradiction. Contradiction means that we will be assuming the reverse of what is given. हमें दिया हुआ है root 2 irrational है, हम इसका रिवर्स अज्यूम करके चलेंगे, इसका उल्टा मान के चलेंगे कि root 2 रैशनल है. ऐसा उल्टा मान के रिवर्स ऑपोजिट मान के हम चलेंगे और फिर धीरे धीरे एनालाइज करेंगे कि वो एक्चुअली रैशनल है या इरैशनल. अभी पता करते हैं. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अज्यूम on the contrary means on the opposite side, we are assuming that root 2 is rational. Okay, we are first assuming that root 2 is rational. Now since it is a rational number, then there must be some integers, say a and b, in which we can write root 2 equal to a upon b. We can write it in this form. Then there exist integers, we are giving the name a and b to these integers, such that root 2 can be written as a upon b, where a and b are co-prime and b is not equal to 0. So what does this mean?
we start it once again. We are assuming on the contrary that we have to prove that root 2 is irrational. We are assuming the reverse part of it. इसका opposite मान रहे हैं कि root 2 rational है. इससे start कर रहे हैं कि let us assume that root 2 is rational. अब ये rational number है तो इसे p by q form में लिख सकते हैं. यहाँ पर p by q की जगह हमने a upon b ले लिया है. So there exist integers a and b such that root 2 is equal to a upon b. यहाँ हम मान रहे हैं a and b are co-prime and b is not 0. We know that the denominator cannot be 0 because division is not defined by 0. What does this mean? Co-prime ऐसे numbers जो simplest form में हैं और अब इनमें कुछ भी common नहीं है. Their HCF is 1. Only one is common between these two numbers a and b. कुछ भी common नहीं है. For example, we have numbers 9 upon 15. मान लीजिए ये है. इन दोनों में 3 कॉमन है, दोनों 3 की टेबल में आते हैं, 3 इन दोनों का फैक्टर है, तो ये अभी कोप्राइम नहीं है. लेकिन जब हम इसको 3 से कैंसिल कर देंगे, 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15. अब 3/5 में कोई भी नंबर कॉमन नहीं है एक्सेप्ट 1, तो इनका HCF 1 हो गया. और ये दोनों नंबर्स 3 and 5 ये क्या कहलाएंगे? कोप्राइम, जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं है. तो हम ये मान के चल रहे हैं कि a और b में भी कुछ भी कॉमन नहीं है एक्सेप्ट 1 के, तो कुछ भी कटने के लिए नहीं है. ये सिंपलेस्ट फॉर्म है a अपॉन b. ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं. नाउ दिस b कैन बी टेकन टू द लेफ्ट साइड. b रूट 2 इक्वल टू a. हम b को लेफ्ट में ले गए तो मल्टीप्लिकेशन में चला गया. अब ये रूट हटाना है हमें, ये प्रॉब्लम करता है, तो इसको हटाने का क्या तरीका है? स्क्वायर कर लेते हैं. दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, अगर लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी. यू कैन राइट स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. What we will get? b square. And what is the square of root 2? It's 2 equal to a square. Let it be equation number 1. If any of you have doubt that how this root 2 square is equal to actually 2, you can understand in this way. This root resembles the power of 1 by 2. इस रूट का मतलब है कि पावर 1 by 2 है, तो एक तो पावर ये 2 है और साथ में 1 by 2 पावर आ गई स्क्वायर रूट की. 2 से 2 कैंसिल हो गए और आपके पास 2 ही बच जाएगा. 2 पावर 1 और 2 पावर 1 इज़ नथिंग बट 2 इटसेल्फ. तो इस तरह से स्क्वायर रूट का स्क्वायर करेंगे अगर आप, तो आपको वही नंबर मिलेगा. अगर आप रूट 7 का स्क्वायर करेंगे तो आपको 7 मिलेगा. रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो आपको 5 मिलेगा. इसी तरह से रूट 6 का स्क्वायर करेंगे अगर आप, तो आपको 6 मिलेगा. तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि whenever we will square a number which is in square root under the square root, then it will come out to be the same number itself. तो अब आपकी ये इक्वेशन 1 आ गई. इस पे फोकस करिए 2b स्क्वायर पे. 2b स्क्वायर, ठीक है, ये 2 का मल्टीपल है. और अब अगर हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो डिवीजन पूरा हो पाएगा. मान लीजिए b की वैल्यू है 4, तो ये 4 स्क्वायर हो गया, यानी 2 × 16 32. अब 32 2 से डिविजिबल है या नहीं है? होगा, क्योंकि ये 2 का मल्टीपल निकल कर आ रहा है, तो 2 इसको पूरा पूरा डिवाइड करेगा. और ये 2b स्क्वायर है क्या? ये तो a स्क्वायर है. आप देखिए यहाँ से 2b स्क्वायर इज़ नथिंग बट a स्क्वायर. तो क्योंकि 2 b स्क्वायर को डिवाइड करेगा, इसका मतलब 2 a स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा. ठीक है, अब इसको हम यूज़ करेंगे आगे. दिस मीन्स दैट 2 डिवाइड्स a स्क्वायर. ठीक है, आप समझ लीजिए यहाँ पे ये 2 का मल्टीपल है a स्क्वायर और इसलिए ये 2 से डिवाइड होगा. अब हमने थ्योरम पढ़ी थी कि अगर 2 डिवाइड्स a स्क्वायर तो 2 a को भी डिवाइड करेगा. तो दिस मीन्स दैट 2 डिवाइड्स a. लेट इट बी सेकेंड स्टेटमेंट. ओके,
अब 2a को भी डिवाइड करेगा, इसका मतलब a इज समथिंग मल्टीपल ऑफ 2, सम मल्टीपल ऑफ 2. लेट a इक्वल टू 2c फॉर सम इंटीजर c. हम मान रहे हैं कि 2a को डिवाइड करेगा, इसका मतलब a इटसेल्फ 2 का कोई मल्टीपल है और वो हमने मान लिया 2 इंटू सी, जहाँ c कोई इंटीजर है. अब अगेन वी विल स्क्वायर इट. a स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 4c स्क्वायर. दिस यू कैन राइट इट क्लियरली. दिस इज 2c होल स्क्वायर. ठीक है. अब यहाँ पर a स्क्वायर की जगह हम ले सकते हैं इक्वेशन 1 से, a स्क्वायर की जगह हम ले लेंगे 2b स्क्वायर. सो वी कैन राइट हियर 2b स्क्वायर इक्वल टू 4c स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन 1. नाउ वी कैन इजीली डिवाइड बाय 2 because 2 is present on both sides. We will get b square equal to 2c square. अब आप देखिए b square, अगेन ये 2 का मल्टीपल है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 डिवाइड्स b स्क्वायर. और हमारी थ्योरम क्या कह रही थी, if 2 divides b square then 2 will divide b also. So we can write 2 divides b. इसको हम स्टेटमेंट 3 नाम दे देते हैं. अब आप देखिए स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 3. 2 डिवाइड्स a, 2 डिवाइड्स b. इसका मतलब 2 कॉमन फैक्टर हो गया, a का भी और b का भी. तो हम यहाँ लिख सकते हैं फ्रॉम 2 and 3, 2 is a factor of both a and b. पर हमने स्टार्टिंग में क्या माना था, we assumed in the beginning that a and b are co-prime. That is, there is no common factor between a and b. And now we are getting one factor that is common to both a and b. दोनों का एक कॉमन फैक्टर मिल गया हमें. तो यहाँ कुछ कॉन्ट्राडिक्शन आ गया. क्या कॉन्ट्राडिक्शन है, दिस contradicts the fact that a and b are co-prime. This contradicts means this opposes the fact that a and b are co-prime. अब ये contradiction क्यों आया, ये contradiction इसलिए आया क्योंकि हमने जो स्टार्टिंग में assume किया था कि √2 रैशनल है, ये जो अज्यूम कर लिया हमने स्टार्टिंग में, ये गलत अज्यूम कर लिया. ये गलत अज्यूम करने से हमारे पास यहाँ एक कॉन्ट्रडिक्शन की सिचुएशन आ गई. एक तरफ हम कह रहे हैं कुछ भी कॉमन नहीं है और एक तरफ हम कह रहे हैं कि 2 कॉमन है. तो ये कंट्रोवर्सी हो गई और ये इसीलिए हुई क्योंकि हमने अज्यूम गलत कर लिया था. तो इसके बाद हम लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज आवर अजम्पशन that √2 is rational. यही माना था हमने स्टार्टिंग में. तो ये assumption is wrong और incorrect. This means that √2 is actually irrational and not a rational number. And this we had to prove. So this is a long question, and once you understand it you will get very much familiar with it, and similar process will be followed in other cases also, for other numbers also. So just go through it. You can again pause the video, rewind the video and go through it once, twice, thrice and just absorb it. Okay, then we move on to the next question, which says
prove that root 3 is irrational. Again it is a question similar to the previous one, so we will follow again the method of proof by contradiction. सबसे पहले हम इसका opposite मानेंगे कि root 3 rational है और same process follow करेंगे. तो आप देखिए कैसे कर रहे हैं. Let us assume that root 3 is rational. ठीक है, हमने इसका opposite assume कर लिया है. Then there exist co-prime integers. हम यहीं पे ले लेते हैं co-prime integers a and b such that root 3 can be written as a upon b. हमने इसको रैशनल नंबर माना है तो a upon b फॉर्म में हम लिख सकते हैं, और a upon b लिखने के लिए हमने a और b को क्या अज्यूम किया है? को प्राइम इंटीजर्स. इंटीजर्स तो होते ही हैं लेकिन ये दोनों को प्राइम है, यानी a अपॉन b अपने आप में सिंपलेस्ट फॉर्म में है, कुछ भी कॉमन नहीं है, ये दोनों आपस में किसी नंबर से कट नहीं रहे हैं. ठीक है, और यहाँ ये ज़रूर मेंशन कीजिएगा कि b इज़ नॉट इक्वल टू 0. नाउ अगेन वी टेक दिस b, ट्रांसपोज इट टू द लेफ्ट हैंड साइड, यू विल गेट इट एज b रूट 3 इक्वल टू a. अब इसका स्क्वायर करेंगे, b रूट 3 होल स्क्वायर equal to a square. Just to remove this square root, we are squaring both sides. What do we get? b का square तो b square, और what will be the square of root 3? We discussed it. It will be 3 itself. So 3b square equal to a square. You can write it as equation 1. अब आप यहाँ देखिए 3 into b square is a square. इसका मतलब a square 3 का एक मल्टीपल है और इसलिए इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा डिवीजन होगा. तो हम यहाँ लिख सकते हैं 3 divides a square. और we learnt that theorem. If 3 divides a square, then 3 will also divide a. So this implies that 3 divides a. I don't know, whenever I write this word divide, there is one problem. 3 divides a. Now 3 divides a means that a should be some multiple of 3. For this we take one more page and then follow it. Let a equal to 3c for some integer c. ठीक है, क्योंकि 3 a को डिवाइड कर रहा है इसका मतलब a अपने आप में 3 का कोई मल्टीपल होगा, और हमने मान लिया कि 3 को c से मल्टीप्लाई करने पर a मिलेगा. तो c कोई इंटीजर है यहाँ पे और a इक्वल टू 3c. Again we will square both sides. a square equal to, it will become 9c square, and this a square can be replaced by 3b square from equation 1. So we can write here 3b square equal to 9c square from equation 1. Okay, one thing more, let us name this as the second statement. Okay, then dividing both sides by 3, you will get it as b square equal to 3c square. इसका मतलब b square भी अब 3 का कोई मल्टीपल है और इसलिए 3b square को डिवाइड करेगा. So we can write here 3 divides, again you can see this problem, b square, and again you can say that if 3 divides b square, then surely 3 will divide b also. So we write here 3 divides b. Okay, now just have a look at these two statements, second and third.
it says 3 divides A and here we are getting 3 divides B. इसका मतलब 3 कॉमन फैक्टर हो गया A और B का. So we can write from 2 and 3. 3 is a factor of A and B both. लेकिन हमने स्टार्टिंग में क्या माना था कि A और B को प्राइम है. इसका मतलब इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है और अब हम कह रहे हैं कि 3 कॉमन है. तो हो गई ना कुछ गड़बड़, कुछ कॉन्ट्राडिक्शन. वी से हियर दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट that A and B are co-prime. This means our assumption, हमने जो शुरू में मान लिया कि √3 रैशनल है वो ही गलत है और उसी की वजह से ये गड़बड़ हो रही है. Our assumption that √3 is rational is wrong, and since this assumption is wrong, so actually √3 is irrational. So got it? You can see it is similar to that we discussed about √2. Both are बिल्कुल सेम. ठीक है ना. तो आप एक बार सीख लीजिए तो आपको कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं. इस तरह से आप √5 का कर सकते हैं, √7 का, √6 का, किसी का भी आप प्रूव कर सकते हैं. बस ये थोड़ा बहुत फिगर्स में चेंज आएगा कैलकुलेशन पार्ट में, अदरवाइज द होल प्रोसेस इज एग्जैक्टली द सेम. ओके, नाउ वी टेक अप क्वेश्चंस ऑफ दिस फॉर्म where we will be having a number in square root and then we will be having some numbers either in addition or subtraction or multiplication. अब ये नंबर अकेला नहीं मिलेगा, इसके साथ कोई और नंबर्स होंगे जो प्लस माइनस मल्टीप्लाई इस तरह से होंगे इसके साथ. तब हम कैसे करेंगे? शो दैट 5 माइनस √3 इज़ इरेशनल. फिर से कॉन्ट्राडिक्शन लेकर चलेंगे कि ये रैशनल है. शुरू से हम मानेंगे इसका ऑपोजिट कि सपोज दैट 5 माइनस √3 इज़ रैशनल. Let us assume that 5 minus √3 is rational. Then there exist, हमें ऐसे इंटीजर्स मिलेंगे जो इसको a/b फॉर्म में हम लिख सकते हैं क्योंकि रैशनल है. सो देयर एग्जिस्ट co-prime integers A and B. Remember, B is not equal to 0 such that 5 minus √3 can be written as A/B. हमने इसको रैशनल नंबर मान लिया है तो A/B फॉर्म में लिख सकते हैं. और A और B क्या है? ऐसे इंटीजर्स जो को प्राइम है. इंटीजर्स तो हैं ही पर साथ ही साथ को प्राइम भी हैं जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं है. ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है A/B एंड दे कैन नॉट बी कैंसल्ड बाय एनी ऑफ द नंबर्स. ठीक है, और याद रखिएगा B तो 0 नहीं हो सकता. अब यहाँ पर हम √3 को अलग कर देंगे, सेपरेट करेंगे. ये माइनस में है तो माइनस में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, इसको उधर ले जाएंगे राइट हैंड साइड में तो प्लस का हो जाएगा 5 इक्वल टू A/B प्लस √3. और हमें √3 की वैल्यू लेनी है, निकालनी है. तो A/B को लेफ्ट में ले आते हैं. ये हो जाएगा 5 माइनस A/B इक्वल टू √3. ठीक है, समझ में आया? 5 वही है, √3 पहले राइट साइड में ले गए तो प्लस में हो गया क्योंकि यहाँ माइनस में, उधर जाके प्लस. और हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि माइनस में हमारे लिए ये ट्रबल सम रहेगा. प्लस कर दिया, फिर A/B लेफ्ट में ले आए, माइनस में हो गया. इसको सॉल्व करते हैं. 5 और B दोनों मल्टीप्लाई होकर के 5B माइनस A/B इक्वल टू √3. यहाँ B को 5 से
मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो 5b माइनस a अपॉन b। अब आप देखिए यहाँ पे, यहाँ b और a दोनों इंटीजर्स हैं। अब b को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5b भी एक इंटीजर होगा, और 5b माइनस a itself will again be an integer. Why? Because subtraction is closed for integers. Closed means when we operate and get the answer, then that also will be an integer. और b तो इंटीजर है ही, तो ये फॉर्म क्या हो गया, इंटीजर अपॉन इंटीजर। और ये किस में होता है ऐसा फॉर्म, रैशनल नंबर में। रैशनल नंबर में ही तो हम p बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ p और q दोनों ही इंटीजर्स होते हैं। तो ये भी इंटीजर अपॉन इंटीजर हो गया, p बाई क्यू फॉर्म। तो एक्चुअली 5b माइनस a अपॉन b अ रैशनल नंबर, और 5b माइनस a अपॉन b ये रैशनल हो गया अगर, तो इसका मतलब ये जिसके इक्वल है √3 ये भी रैशनल हो गया। और हमें पता है कि √3 तो रैशनल नंबर नहीं होता है, तो यहाँ थोड़ी कंट्रोवर्सी हो गई। हम कह रहे हैं कि √3 रैशनल है, और एक्चुअली तो √3 रैशनल नहीं है, हमने अभी अभी प्रूव किया था। तो अब इसको कैसे प्रेजेंट करेंगे वो देखते हैं। वी टेक ऑन वन मोर पेज। सिंस a and b are integers, therefore 5b minus a upon b is a rational number. Okay, then this means that √3 is rational. यही मतलब हुआ ना, ये रैशनल है तो √3 भी रैशनल हो गया। बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √3 इज इर्रेशनल। एक्चुअली तो √3 इर्रेशनल होता है, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √3 इज इर्रेशनल। और इसका क्या मतलब हुआ, आर अजम्पशन, विच अजम्पशन, दैट 5 माइनस √3 इज रैशनल, ये जो हमने स्टार्टिंग में अज्यूम किया था इज इनकरेक्ट। ये जो कंट्रोवर्सी हो गई, यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है, ये इसीलिए आ रहा है क्योंकि हमने जो अज्यूम कर लिया कि 5 माइनस √3 रैशनल है, ये गलत है, ये अजम्पशन गलत ले लिया हमने, और इसीलिए हमारे पास ये कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट हो रहा है। सो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग और इनकरेक्ट। दिस मीन्स दैट 5 माइनस √3 is irrational. Got it? In this way we will be proving it. You can go through it, rewind the video, go through it once, twice, and you can easily get it. Okay? Then the next question is, show that 2√3 is irrational. Again we have some number 2 in multiplication with √3. तो यहाँ फिर से हम ऑपोजिट मान के चलेंगे। लेट अस अज्यूम ऑन द कॉन्ट्रेरी दैट 2√3 इज रैशनल। लेट अस अज्यूम ऑन द कॉन्ट्रेरी दैट 2√3 इज रैशनल। अब नेक्स्ट लाइन हमें क्या लिखनी चाहिए, सोच के बताइए। बार बार लिख रहे हैं हम, तो अब तक तो आपको याद भी हो जानी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास कुछ इंटीजर्स होने चाहिए जिससे हम इसको a अपॉन b फॉर्म में लिख सकें, क्योंकि ये रैशनल है। सो वी कैन राइट देन देयर एग्जिस्ट co-prime integers
A and B such that we can write 2 root 3 equal to A upon B, and remember B is not equal to 0. This you have to mention every time. Okay, now what we will do, we will separate out this root 3. इसको अलग करना है, इसके साथ जो भी नंबर्स हैं उनको राइट साइड ले जाते हैं और रूट 3 को अलग करेंगे. तो ये 2 यहाँ मल्टीप्लिकेशन में इधर आके डिवीजन में आ जाएगा ट्रांसपोज होने पर a अपॉन 2b. ठीक है, अब a और b इंटीजर्स हैं तो ये 2b भी तो इंटीजर ही होगा. 2 इंटू एनी नंबर एनी इंटीजर, ये भी इंटीजर होगा. अगेन इट इज़ ऑफ द फॉर्म p बाई क्यू, इंटीजर अपॉन इंटीजर. इसका मतलब ये एक रैशनल नंबर हो गया राइट साइड पे, और राइट साइड रैशनल है, इसका मतलब रूट 3 भी रैशनल है. और ये तो गलत हो गया, रूट 3 तो इरैशनल होता है. तो अगेन देयर इज़ वन कॉन्ट्राडिक्शन, and this means our assumption is wrong in the starting, and this means that 2 root 3 is actually irrational. Now we present this discussion in this way. Since a and b are integers, a upon 2b is rational. ठीक है, अब ये राइट साइड रैशनल है तो लेफ्ट भी रैशनल होगी. दिस मीन्स रूट 3 इज रैशनल. पर क्या सच में रूट 3 रैशनल होता है? नो, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट that root 3 is irrational. इसका कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है. This means our assumption that 2 root 3 is rational, ये जो assumption हमने लिया है is incorrect, and this means that 2 root 3 is irrational. This we had to prove. So every time the procedure will be, we will assume on the contrary that it is rational, then we can always write it in the form a upon b, where a and b are co-prime integers. Then solving it, we get root 3 equal to a upon 2b, and it is a rational number because integer upon integer is a rational number. Since the right side is rational, this means left side is also rational. Root 3 is rational, but this contradicts the fact that root 3 is irrational. Actually तो root 3 irrational होता है. तो ये contradiction हमें बता रहा है कि हमारा assumption, our assumption is incorrect, and actually 2 root 3 is irrational. So in this way, these were some examples. In our next class, we will be taking up exercise 1.3 again based on this whole discussion. Till then, take a good rest and practice these questions. Goodbye.